If I had to pinpoint one tactic that defined the FIFA World Cup 2026, it would be the low block. Cape Verde ने स्पेन को 0-0 पे होल्ड किया. England, even after having 80% possession against Ghana, did not win the match. Turkey, जिसने group stage के पास almost 75% possession थी, they exited in the group stage itself. And eventually, in the final, ironically, Argentina, who decided to do a low block, eventually ended up being dominated and Spain winning the World Cup. But low block एक ऐसी tactic है which has very split opinions. You will have people tweet football won against a low block, and while I agree कि यार it's probably not the most fancy tactic, I feel it is one of the most beautiful tactics in football, right? And आज हम इसी के बारे में discuss करेंगे. What is a low block? Why do teams actually use a low block? And why did Argentina fail so miserably at it in the World Cup final? I think one of the most beautiful phrases that I've heard about the low block is that it is football's great equalizer. It simply means कि यार अगर ना there are two types of players, like there are talented / skillful players and there are less or lower talented / skillful players. And we would not get the most beautiful underdog stories in football ever if they had gone man to man, right? We wouldn't have a Cape Verde this World Cup. We wouldn't have had a Morocco. We wouldn't have had Inter 2010 semi-final against Barcelona, because if these teams would have gone man to man in terms of skill or ability, वो लोग थ्रैश हो जाते, right? वो 6-7 गोल से हारते, right? So I feel low block is probably football's great equalizer that gives chance to the lower skill, lower level teams to win / get results against the top teams. But समझते हैं what a low block actually is. So if I have to define a low block is nothing but when a defending team decides कि they will sit deep in their own half and allow the opposition to have a lot of the ball, right? मतलब उनका objective यहाँ पे possession नहीं होता, उनका objective है कि उनको opposition का threat जितना ज़्यादा वो nullify कर सकते हैं उतना ज़्यादा करना है. And एक ऐसी tactic है which is usually opted by a team which is slightly weaker in terms of skill set against a bigger team. So आप देखोगे lot of times La Liga में बार्सिलोना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट टीम लो ब्लॉक में खेलते हैं, प्रीमियर लीग में सिटी लिवरपूल के अगेंस्ट लो ब्लॉक में खेलते हैं. इट्स जस्ट अ टीम्स वे ऑफ नलिफाइंग द एबिलिटी ऑफ द ऑपोजिशन. एंड अगर मैं सेटअप देखूँ ना, लो ब्लॉक ना यूजुअली बहुत सिमिलर सेटअप में होता है, राइट? इट यूजुअली, मैं कहूँगा लो ब्लॉक्स ना यूजुअली तीन फॉर्मेशन, तीन तरीके से सेटअप होता है. इट्स यूजुअली अ 5-4-1 जहां पे यू हैव 5 डिफेंडर्स, 4 मिडफील्डर्स, 1 अटैकर. इट हैपेंस इन अ 4-5-1 जहां पे 4 डिफेंडर्स, 5 मिडफील्डर्स, 1 स्ट्राइकर, और समटाइम्स इट हैपेंस इन अ 4-4-2 एज वेल. बट 4-4-2 प्रॉब्ली एक लो ब्लॉक के लिए सबसे कम देखी हुई फॉर्मेशन होती है. सो अगेन द आइडिया इज एक इंफीरियर टीम को अगर मौका चाहिए एक मैच जीतने का, तो लो ब्लॉक इज वन ऑफ द टैक्टिक्स दैट दीज टीम्स यूज, राइट? सुनने में बड़ा आसान लगता है, सुनने में थ्योरेटिकली बड़ा इजी है, बट लो ब्लॉक के ना 4 कोर फंडामेंटल्स बोलूंगा मैं है जिसके अराउंड लो ब्लॉक की एंटायर टैक्टिक रिवॉल्व करती है. एंड इट्स मोर साइंस, इट्स मोर थॉटफुल देन पीपल एक्चुअली अज्यूम इट टू बी. तो चलो चारों टैक्टिक को, चारों फंडामेंटल्स को एक एक करके समझते हैं. सबसे पहली चीज, व्हाट मेक्स अ लो ब्लॉक सक्सेसफुल इज कॉम्पैक्टनेस, right? Compactness, both horizontal and vertical compactness. लो ब्लॉक का एक फंडामेंटल आइडिया है कि जो ऑपोजिशन है उसको अटैकिंग एरिया में ज्यादा स्पेस नहीं देनी है. तो आप देखोगे जो डिफेंडर्स, मिडफील्ड और जो अटैकिंग लाइन है उसमें बहुत कम गैप होता है, राइट? जो डिफेंसिव लाइन और मिडफील्ड लाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होती है इज बिकॉज द गोल इज कि जो आपके अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं, नंबर 10 क्रिएटिव प्लेयर्स, विंगर्स, वो यूजुअली डिफेंसिव लाइन और मिडफील्ड लाइन के बीच में रहते हैं, राइट? एंड अगर उनको ज्यादा टाइम या ज्यादा स्पेस मिलती है इज वेयर द एबिलिटी आउटशाइन्स द डिफेंसिव स्ट्रक्चर. तो टीम्स क्या करती हैं, उनको स्पेस ही नहीं देती हैं. अगर उनके पास बॉल आती है एकदम उनके पास एक डिफेंडर प्रेस करने के लिए होता है, राइट? तो आपने बहुत सारे मैचेस में देखा होगा कि यार लमीन यमाल के अगेंस्ट अगर कोरता है वो एकदम उसको प्रेस करते हैं जैसे वो किसी भी डेंजर एरिया में आता है. या डैनी ओल्मो, पेड्री, माइकल ओलीसे, राइट? सिमिलरली आपको कोई भी नंबर 10 ले लो, लायनल मेसी, राइट? द आइडिया है तुमको बाहर भेजो, वाइड रखो, सेंटर ऑफ द पिच के आसपास ना आने दो, ताकि डिफेंसिवली टीम्स कॉम्पैक्ट रहें, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ताकि ना उनके बीच से कोई पास खेला जा सके,
अगर उनको पास खेलना है तो उनको लॉफ्टेड पास खेलना होगा, एंड यूजुअली ये टीम्स डिफेंड अच्छा करती हैं एरियल बॉल्स को, एंड बीच में अटैकिंग प्लेयर्स के पास कोई भी जगह नहीं हो, राइट? This is the first principle, first fundamental of how a low block functions. Fundamental number 2, protect the box and not the ball. एक बहुत core principle of a low block is the fact कि यार you don't go for the ball, you defend the box. So basically जो danger area around the box, right? बॉक्स टॉप, बॉक्स का थोड़ा सा डीप वाला एरिया, तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि यार ऑपोजिशन को यहाँ पे टाइम ना मिले, ऑपोजिशन को यहाँ स्पेस ना मिले, एंड दे कैन हैव द बॉल इन देयर ओन हाफ और जस्ट नियर द हाफ लाइन, राइट? सो दे डोंट प्रेस वेरी एग्रेसिवली, एंड जब तक टीम्स डेंजर एरिया में नहीं पहुंच जाती है, वो हाफ स्पेस वाले एरिया में या डिफेंडिंग हाफ की हाफ तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक जो डिफेंडिंग टीम है वो ज्यादा प्रेस करती नहीं है. So ultimately defending teams don't chase the ball, they want to keep their area around the box protected, right? तो अगर टीम कहीं और बॉल ले जा रही है, कहीं और है, थोड़ा सा पीछे, they won't even press, they will let the opposition have the ball, and तभी आप जो 70-70, 80-80% पोजीशन स्टैट्स देखते हो वो यही होता है. एंड यहीं पे आपने देखा होगा, अब इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना सेमीफाइनल था, इंग्लैंड डिसाइडेड टू ड्रॉप डीप, तो अर्जेंटीना के पास सेकंड हाफ ऑफ द मैच में ऑलमोस्ट 85-90% पोजीशन थी ऑलमोस्ट, राइट? सो द सेकंड फंडामेंटल इज यू डिफेंड द बॉक्स एंड not the ball. Fundamental number 3, which I feel is also what leads to, मतलब जो पहले दोनों चीजों का आउटपुट है, is force the opposition wide, right? Now आप लोगों ने एक बहुत टर्म सुनी होगी लास्ट 5-6 सालों में कि यार टर्म XG is nothing but expected goal, कि अगर कोई प्लेयर किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द पिच में है तो what is the percentage chance of them scoring? So for example, अगर 0.5 XG है, इसका मतलब है कि अगर यार 100 चांस बने हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन से तो 50 गोल हुए हैं. 0.1 XG इज कि यार 100 चांस बने हैं, उसमें से सिर्फ 10 कन्वर्ट हुए हैं, राइट? द लोअर द XG, द मोर डिफिकल्ट इट इज फॉर अ टीम टू स्कोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन, राइट? सो जितना आप बाहर जाते हो, जितना आप वाइड जाते हो, योर XG डिक्रीजेस, एंड even the ability of players to create goal scoring opportunities also decreases. तो टीम्स क्या करती हैं, टीम सेंटर वाला एरिया ऑक्यूपाई करती हैं एंड उनके वाइड, उनके विंगर स्लैश उनके फुल बैक्स को बॉल रखने देती हैं. वो कहती हैं यार तुम क्रॉसेस डालो बॉक्स में, एंड वी आर कॉन्फिडेंट क्या कि हमारे जो सेंटर बैक्स हैं, हमारे डिफेंडर्स हैं, विल विन द एरियल डुएल्स. सो आप बहुत टाइम देखोगे जब भी कोई टीम लो ब्लॉक में खेलती है, दे हैव वेरी टॉल, वेरी फिजिकल, वेरी एरियल डोमिनेटिंग सेंटर बैक्स, राइट? सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑपोजिशन को फोर्स वाइड करो, बिकॉज उनको सेंटर में स्पेस ना मिल रही है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता बाहर विंग्स पे जाने का, एंड आइदर तुमको ये एक बहुत ब्रिलियंट मूव नलिफाई कर सकता है, अदरवाइज द एक्सपेक्टेशन इज कि अगर बॉल बॉक्स में आएगा तो उसको डिफेंडर्स क्लियर कर देंगे. इंग्लैंड ने भी अर्जेंटीना के साथ सेमीफाइनल में यही ट्राई किया था कि वो डैन बर्न, एजरी कॉन्ट्रा, सब लोग आगे थे, राइट? टॉल सेंटर बैक्स, बट अल्टीमेटली दे वर नॉट एबल टू डिफेंड. वो उनका एरर था, बट अगेन द ऑब्जेक्टिव इज की टीम्स को, अटैकिंग टीम्स को वाइड पुश करना. द फोर्थ फंडामेंटल, एंड विच इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस दैट अर्जेंटीना फेल टू डू एनीथिंग इन द फाइनल, इज कि जो लो ब्लॉक है ना, वो एक शेल नहीं है, राइट? वो एक टैक्टिक है वेयर द आइडिया इज कि यार the moment the attacking team loses the ball, the moment the defending team has the possession, the goal is to counter attack. Low block वाली teams तभी जीतती हैं जब उनके पास एक अच्छे काउंटर अटैक के लिए प्लेयर्स हैं, क्योंकि यार a lot of time लो ब्लॉक में क्या होता है, बहुत जो अटैकिंग टीम होती है ना, वो बहुत आगे आई होती है. a lot of times people are somewhat out of position, right? और इफ नॉट आउट ऑफ पोजीशन, दे आर वेरी हाई इन द ऑपोजिशन हाफ. तो कभी भी डिफेंडिंग टीम के पास बॉल आ गई, उन्होंने बॉल क्लियर कर दिया, हल्का सा भी टाइम हुआ ना, एंड उनके पास एक तेज पेसी प्लेयर होगा, दे कैन गो ऑन एंड विन ऑन द काउंटर. केप वर्डे ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट किया, इजिप्ट ने भी अर्जेंटीना के अगेंस्ट ये किया था, जब पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में मोरक्को ने हराया था या जापान ने हराया था. दीज गाइज यूज काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ब्यूटिफुली. द मोमेंट दैट दे हैव द बॉल, पेसी विंगर्स, पेसी प्लेयर्स को रिलीज करेंगे, एंड देन दे विल कन्वर्ट देयर चांसेस. So these are the core fundamentals around which a low block revolves. Now मैंने बात करी आपकी कि यार स्टार्टिंग में बोला कि यार अर्जेंटीना भी लो ब्लॉक में खेली थी, बट why did अर्जेंटीना struggle so bad? Now ये फोर्थ पॉइंट का ही एक
कंटिन्यूएशन है जहां पे आप देखोगे अर्जेंटीना के पास कोई रनर ही नहीं था, राइट? दे ट्राइड कि यार निको गोंजालेस को आगे रखेंगे, उसके पास बॉल रिलीज करेंगे, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट एंड अल्टीमेटली वो इतना थक चुके थे, आई थिंक इवन ड्यूरिंग द हाफ टाइम, एंड अनफॉर्चुनेटली विद लियो मेसी यू कांट प्ले दैट काइंड ऑफ फुटबॉल। वो पहली वो 10 वर्सेस 11 वाली सिचुएशन हो जाती है एंड तुम उस 10 वर्सेस 11 में भी लो ब्लॉक खेलोगे, सर देयर इज नो चांस दैट यू आर गोइंग टू विन दैट पर्टिकुलर मैच। एंड जैसे निको को उन्होंने रिप्लेस किया, दे रिमूव्ड ऑल देयर चांसेस ऑफ बीइंग एबल टू काउंटर, राइट? एंजो का रेड कार्ड तो छोड़ो, दे डिड नॉट हैव प्लेयर्स हु कुड रन अग्रेसिवली जैसे अर्जेंटीना के पास बॉल आती थी। उन्होंने मोलिना के साथ ट्राई करना चाहिए था, गुंजालेस के साथ ट्राई किया, बट इट जस्ट वाजंट हैपनिंग, राइट? एंड अल्टीमेटली स्पेन ने एक बहुत अच्छी चीज करी थी, इज वो प्रेस कर रहे थे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, अपनी अटैकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ताकि यार बॉल मार्टिनेज के पास या टैग्लिफिको के पास आए। बड़ा क्लेवर तरीका था, बिकॉज इस तरीके से वो लियोनेल मेसी के पास बॉल रिसीव करने को बिल्कुल नलिफाई कर रहे थे, राइट? सो दैट वाज द टैक्टिक, बट दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि द रीजन व्हाई द लो ब्लॉक डिड नॉट वर्क आउट फॉर अर्जेंटीना, दे डिड नॉट हैव रनर्स हु कुड बी रिलीज्ड ड्यूरिंग काउंटर अटैक्स, and that is where one of the basic fundamentals of a low block gets completely broken. Let me know your opinion on the low blocks and whether you feel it is a tactic that actually is more football than people credit it to be. And if you like this video, hit the subscribe button. Let me know in the comments if you want more such tactical videos on any other topic, and I'd be happy to do it. Thank you so much for tuning in. Have a great day, and again, subscribe to Football Unplugged.